फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन करता है। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। एंट्रोगेस्ट्रॉन इज, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। चलो सो पहले क्वेश्चन, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एंट्रोगेस्ट्रॉन इज, okay, Androgesterone is, so it is a hormone secreted by duodenal mucosa, ठीक? So it is a hormone, so this one, okay? So this is the answer, huh? This is the hormone secreted by the duodenal mucosa, androgesterone. What is the function of androgesterone? What is the function of androgesterone? It inhibits gastric secretion and gastric motility. It is produced by duodenal mucosa, but it inhibits gastric secretion and gastric motility. Yes. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If the pituitary gland of an adult rat is surgically removed, which of the following endocrine glands will be less affected? Adrenal cortex, adrenal medulla, thyroid, gonads. Yes, Pranab, welcome to the class. Yes, you are the future doctor. Ankita, Ahana, Dr. Bhavna, S. Nandini. So all are welcome to the class. Okay, so देख लो बेटा। So शुभम सामंतराय, यूजर सुभशांत दास, तो कांग्रेट्स। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है ये, क्या पूछ रहा है? मतलब बहुत से बच्चों ने गलत बोल दिया है। If the pituitary gland of an adult rat is surgically removed, which of the following endocrine glands will be less affected? देखो सब तो इफेक्ट होगा because pituitary is the master endocrine gland, but which will be the less affected? You see adrenal cortex. तो from pituitary ACTH is released, adrenocorticotropic hormone, वो affected होगा। उससे TSH निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो इफेक्टेड होगा। FSH LH निकलता है तो भी, लेकिन एड्रेनल मेडुला के लिए वैसा कोई डायरेक्ट हार्मोन नहीं है। तो एड्रेनल मेडुला के लिए डायरेक्ट हार्मोन नहीं है तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड से। ओके, सो इट विल बी द लेस इफेक्टेड। समझ में आया? पिट्यूटरी से हमारा ACTH निकलता है, ACTH तुम्हारा निकलता है। वॉइस क्लियर है ना? ब्रिजेस वॉइस इज क्लियर? हाँ ठीक, ओके, ये समझ में आया? तो आंसर विल बी द एड्रेनल मेडुला, बिकॉज एड्रेनल कोर्टेक्स, थायराइड, गोनाड्स के लिए डायरेक्टली हार्मोन उससे रिलीज होते हैं। एडिसन्स डिजीज रिजल्ट्स फ्रॉम हाइपरट्रोफी ऑफ गोनाड्स, हाइपर एक्टिविटी ऑफ लेडिक सेल्स, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रेनल कोर्टेक्स, नॉन ऑफ द अबव। चलो, is there a question in NEET? देखो एनटीए जो ऐप तुम्हारा है, ये तुम्हारा क्या है, वैसा नहीं है कि डायरेक्टली तुम्हारा क्वेश्चन उससे मिल जाएगा तुमको, वैसा नहीं है। इट इज फॉर प्रैक्टिस, इट इज फॉर प्रैक्टिस। खुशनुमा, वेलकम टू द क्लास। जिसका स्लाइड नहीं आ रहा है उसका नेट स्लो है, ठीक? यस। So you see here, शुभम सामंतराय, यूजर सुभशांत दास ने टॉप किया है यहाँ पे। तो इसका आंसर तुम्हारा क्या होगा? एडिसन्स डिजीज, ठीक?
ये तुम्हारा होगा हाइपोसिक्रेशन, ये वाला आंसर होगा, ठीक। हाइपोसिक्रेशन ऑफ अड्रेनल कोर्टेक्स, ओके, पर्टिकुलरली योर व्हाट, डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच हार्मोन, बताओ यहाँ पे, डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच हार्मोन will lead to the Addison's disease? Anyone reply in the comment box? Yes, aldosterone. Okay, so deficiency of aldosterone will lead to the Addison's disease. Which of the following is not a characteristics of insulin? Leads to direct uptake of glucose by hepatocytes, bind to glycoprotein receptor on cell membrane. A deficiency lead to diabetes mellitus. Its oversecretion lead to insulin shock. ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आंसर केयरफुली देना। इसका मैक्सिमम चांसेस है दैट यू मे गिव द रॉन्ग आंसर। इसका मैक्सिमम चांसेस है यू मे गिव द रॉन्ग आंसर। यू सी, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने, ओके, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। सो यू सी, कीर्ति, सुबशांत एंड यूजर, okay, which of the following is not a characteristics of insulin? Okay, so यहाँ पे देखो, if you do the answer, इसका आंसर तुम्हारा ए होगा, leads to direct uptake of glucose by hepatocytes. Okay, let me explain the other options. Let me explain. Not a पूछा है, not a, okay, binds to glycoprotein receptors on the cell membrane. It is correct. Yes, it is correct. Okay, deficiency lead to diabetes mellitus, oversecretion lead to insulin shock. Okay, so this is not the property. देखो बहुत से बच्चों ने इजी बोला है लेकिन मैक्सिमम इसका आंसर रॉन्ग आया है। Okay, adaptation of eyes in the dark is due to, adaptation of eyes in the dark is due to. In the end we also revise some concept. हम यहाँ पे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। एट द एंड at least 10 minutes we also revise some concepts. Am I audible to all? Voice clear आ रहा है? Anyone reply? Voice clear है? अरे वॉइस क्लियर, देखो जिसका भी वॉइस कुछ प्रॉब्लम होगा ना, तुम्हारा एक्चुअली नेट का प्रॉब्लम होगा। अगर नेट होगा फास्ट नहीं होगा तो ये नहीं होगा। तो देखो, एडेप्टेशन ऑफ आईज इन द डार्क इज ड्यू टू डार्क एडेप्टेशन, ठीक। इसका रिप्लीशन ऑफ विजन पिगमेंट्स इन द रॉड्स। तो लेट मी एक्सप्लेन। व्हेन द लाइट विल फॉल ऑन द रोडोस्पिन, ये स्प्लिट हो जाता है। Again in the dark it is reunited. इसको हम बोलते हैं adaptation of eyes बोलते हैं डार्क। रिप्लीशन ऑफ, मैंने तुम्हारा आई का जो लेक्चर में इसको समझाया था अभी इसको मैंने, ठीक। आई का लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, यू सी दैट लेक्चर, आई हैव एक्सप्लेन देयर डार्क एडेप्टेशन। देखो जिसका बेटा लैग हो रहा है उनका, देखो मेरा तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, मेरा जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है मेरा 100 Mbps डाउनलोड, मतलब मोर देन 80 स्पीड मेरा है। मेरा ब्रॉडबैंड है ना, तो मेरा डाउनलोड एंड अपलोड मोर देन 80 Mbps स्पीड है। तुम लोगों का कितना 2-3 होगा सब मोबाइल में, जियो एयरटेल में। चलो, द रिसेप्टर्स फॉर टच प्रेजेंट इन द स्किन, the receptors for touch present in the skins are called, चलो
मैंने चैट को डिसेबल कर दिया है। देखो, सो यू सी द लीडर बोर्ड, ठीक। यूजर कीर्ति सिद्धार्थ शंकर। देखो क्वेश्चन बोल रहा है ये तो इंफॉर्मेशन बेस्ड वाला क्वेश्चन है। एट द एंड में मैं तो डिस्कस भी करवा दूंगा, जब तुम्हारा इससे ये जो चैप्टर तो रिसेप्टर्स है ना, इससे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो एट द एंड ऑफ द क्लास में हम देखो नीट के लिए हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करेंगे। ओके, तो रिसेप्टर फॉर टच प्रेजेंट इन द स्किन आर कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड मेसनर्स कॉर्पस्कल्स। बाकी मैं तुम्हारे एंड में थोड़ा बता दूंगा सब रिसेप्टर के बारे में, मेसनर्स कॉर्पस्कल्स। Examine the diagram of the two cell types A and B given below and select the correct option. चलो, seven. Examine the diagram carefully and select the correct option. सो ये तुम्हारा लीडर बोर्ड हो गया, यूजर कीर्ति सिद्धार्थ शंकर। ओके, तो 7 तुम्हारा देखो डायग्राम, तुम क्या तुम देखो थोड़ा डायग्राम। ओके, सेल ई इज द कोन, तो ये तुम्हारा कौन सा है, ये तुम्हारा कोन है, दिस इज द कोन, ये तुम्हारा कोन है। एंड ये तुम्हारा फोबिया सेंट्रलिस, ठीक। देयर इट इज कॉन्सेंट्रेटेड मींस तुम्हारा जो होता है दैट इज कॉल्ड फोबिया। Fovea, according to NCERT book, fovea is the thinned out part of the retina where cone cells are densely packed. You refer that statement. तो ये आंसर होगा। A person is wearing spectacles with concave lenses for correct vision. While not using glasses, the image of the distant object in this case will be formed. देखो इसका आंसर क्या होगा तुम्हारा, इट इज द केस ऑफ व्हाट, इट इज द केस ऑफ मायोपिया, इसको मायोपिया बोलते हैं। इट इज द केस ऑफ मायोपिया, तुमको समझा दे रहा हूं, इट इज द केस ऑफ मायोपिया। ओके, सो यहां पे तुम्हारा क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, लेट मी एक्सप्लेन, थोड़ा समझा दे रहा हूं, ठीक, थोड़ा समझा तुमको दे रहा हूं, जस्ट एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। सपोज तुम्हारा ये आई बॉल है, ठीक, यहाँ पे तुम्हारा लेंस है। अगर आदमी को इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, शॉर्ट साइटनेस, तो क्या होगा, यहाँ पे लाइट तुम्हारा होगा रेटिना के तुम्हारा जस्ट यहाँ पे तुम्हारा फोकस होगा, ठीक। तो इट इज द केस ऑफ व्हाट, मायोपिया बिफोर द रेटिना। ये अगर रेटिना तुम्हारा है, इफ इट इज द रेटिना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग द बाइकॉनकेव लेंस। जब बाइकॉनकेव लेंस तुम्हारा यूज होगा तुम्हारा, तो उसके बाद लाइट तुम्हारा आकर के पूरा रेटिना में तुम्हारा फोकस होगा। सो इन दिस केस अगर वो चश्मा यूज नहीं करता है तो ऑब्जेक्ट विल बी फोकस जस्ट इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। सो ये तुम्हारा हो गया इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मैं पोल तुमको दे रहा हूं। द पोल इज फॉर क्वेश्चन नंबर 9।
The poll is for question number 9. मैं चैट डिसेबल कर दे रहा हूं क्योंकि अगर ज्यादा चैटिंग करोगे तो हैंगिंग होगा। तुम्हारा लैग इसीलिए भी हो रहा है कि बच्चे ज्यादा चैटिंग कर रहे हैं, दे आर गॉसिपिंग अमंग ईच अदर, दैट्स व्हाई डिसेबल द चैट। देखो यहाँ पे, so cells of Dieter's occurring, they are found in the organ of Corti. तो organ of Corti is the organ of hearing, okay? It contains sensory hair cells and supporting cells, and the supporting cells are of various types like cells of Dieter, one is the cells of Claudius, okay? So many cells of Pilat, so like that, cells of Dieter. The black pigment in the eye which reduces internal reflection is located in retina, iris, sclerotic, cornea. So I am giving poll for question number 10. The poll is for question number 10. चलो, the poll is for question number 10. यू सी पोल उतना खराब रिजल्ट आया है, मैक्सिमम बच्चों ने आइरिस आंसर दिया है। अरे आइरिस नहीं होगा, यू सी आइरिस कंटेन पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू द, ठीक, लेकिन रेटिना, रेटिना कंटेन डार्क पिगमेंट, ओके, रेटिना कंटेन डार्क पिगमेंट, आइरिस नहीं होगा। कॉर्निया तो तुम्हारा ट्रांसपेरेंट है, स्क्लेरोटिक तो होगा नहीं तुम्हारा, रेटिना जो तुम, आइरिस जो तुम्हारा है, ठीक, ये तो बाहर की तरफ तुम्हारा है, तो ये नहीं होगा। सो रेटिना इज द आंसर, ओके। द रेटिना कंटेन्स ब्लैक पिगमेंट, मेलानिन पिगमेंट, ठीक। सो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक पार्ट ऑफ द रेटिना। रेटिना के दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्क्लेरोटिक पार्ट, एक होता है ऑप्टिक पार्ट। The optic part of the retina contains melanin pigment that prevent the internal reflection of light and also blurring of the image. Retina. Next. Pacinian corpuscles occur in the skin of certain parts of the body in mammals. These are type of glands, pain receptors, naked tactile receptors, and encapsulated pressure receptors. So, poll for the 11. चलो, start. So, ये तुम्हारा आगे लीडर बोर्ड आ गया, ठीक। Pacinian corpuscles occur in the skin of certain body parts, ये तुम्हारा होगा आंसर डी होगा। They are encapsulated pressure receptors, मतलब सपोज ये तुम्हारा स्किन है, ठीक, तो स्किन के अंदर में तुम्हारा ये रिसेप्टर्स हैं and they are with some kind of coverings, ठीक। Encapsulated receptors मीन विद कैप्सूल का कवरिंग उनमें होता है, तो पेकिनियन corpuscles, ठीक, encapsulated pressure receptors. तो poll for the question number 12. When we migrate from dark to light, we become blind for some time, and after that we can see. What is that called? Accommodation, adaptation, mutation, ठीक, photoperiodism.
देख लो। सो जस्ट एक पहले वाला क्वेश्चन हमने करा, वी जस्ट हैड सम क्वेश्चंस, इट इज कॉल्ड डार्क एडाप्टेशन। देन पोल तुमको मैं देता हूं फॉर क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। चलो, poll is for question number 13, where you will find the Bowman's glands located in। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा ये है, Bowman's glands are located in anterior pituitary, female reproductive system of cockroach, olfactory epithelium of nose, proximal end of uniforous tubules। इसका भी पोल मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन द रॉन्ग आंसर। इसका क्या होगा, ये वाला आंसर होगा, ठीक। olfactory epithelium of our nose, that is also called Schneiderian membrane। Schneiderian membrane they have the olfactory epithelium, Bowman's glands। इसका प्रॉपर्टी तुम्हारा क्या होता है, they are the mucus secreting gland, they are the mucus secreting gland, they secrete mucus, Bowman's gland। ये थोड़ा अच्छे से पढ़ लो एक बार। Which of the following is correct? Just have a reading, I am giving you 15 seconds, have a quick reading, then I will start the poll। Questions answer must be correct, wrong नहीं होना चाहिए। थोड़ा भेजा घुमाओ। इसमें कौन सा करेक्ट है? चलो पोल स्टार्ट करता हूं। इसमें सबका गया, इसमें पोल पूरा स्माश हो गया, यहां पे तुम्हारा पोल सब हो गया। ओनली 11% बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। देखो ऐसा कुछ ओनली 10 रिड्यूस होते जा रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है। सो देखो किसने ये तुम्हारा दिया है। ओके, सो वेल डन यूजर कीर्तिन सिद्धार्थ शंकर। ठीक, अरे क्वेश्चन क्या है, कौन सा इसमें से करेक्ट है? ये वाला, वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट अकर अंडर सिमिलर कंडीशन। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा समझा दे, लेट मी एक्सप्लेन, बहुत से बच्चों डाउट होगा। देखो एक्सप्लेन कर दे रहा हूं तुम्हारा। ये सपोज तुम्हारा हेनेल्स लूप तुम्हारा है, ये हेनेल्स लूप तुम्हारा है, ये तुम्हारा है कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज हेनेल्स लूप, ये उसका डिसेंडिंग लिम्ब है। तो डिसेंडिंग लिम्ब में तुम्हारा क्या होता है, यहां से तुम्हारा वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, यहां से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। तो नॉर्मली टुवर्ड्स इन दिस एरिया osmolarity are same, in this area osmolarity are same, in this area nearly about you will find 800 to 900 milliosmol per liter की एरिया में। तो डिसेंडिंग लिम्ब में और तुम्हारा कलेक्टिंग डक्ट में इसका जो एनवायरनमेंट का जो है ऑस्मोलैरिटी लगभग सेम होता है, सेम। तो यहां से जो वाटर एब्जॉर्ब होगा, यहां से जो वाटर एब्जॉर्ब होगा वो तुम्हारा ये होगा in the same environmental condition। ओके, तो ये थोड़ा याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट occur in the similar condition। चलो, in the presence of vasopressin the greatest fraction of filtered water is absorbed in। अच्छा से ध्यान से पढ़ो, लूप ऑफ हेनेल, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूब। तो चलो पोल को तुमको मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इसका भी आंसर बहुत गलत आया है, उतना अच्छा पोल नहीं है इसका भी।
देख लो, देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ वेसोप्रेसिन द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन ऑफ फिल्टर्ड वाटर रीअब्सॉर्बिंग। तुमको सब ये लगता होगा, डीसीटी लगता होगा, डीसीटी नहीं है आंसर, ठीक, नॉट द डीसीटी, डीसीटी इज नॉट द आंसर, क्योंकि ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तुमको सी और डी लगेगा तुमको, तो सी तुम्हारा होगा नहीं, वो मैक्सिमम पूछा है। देखो डीसीटी में भी होता है, लेकिन वो तुम्हारा कंडीशनल होता है, तो आंसर तुम्हारा होगा कलेक्टिंग ट्यूबुल और कलेक्टिंग डक्ट। ओके, सो नेक्स्ट, excretion of potassium is primarily governed by, थोड़ा केयरफुली पढ़ लो एक बार जस्ट हैव ए रीडिंग, just have a reading, we will go for the poll. इसका भी उतना अच्छा पोल नहीं आया। लेट मी एक्सप्लेन, मैं समझा। एक्सक्रीशन इज पोटेशियम प्राइम इज गवर्न प्राइमरीली, प्राइमरीली पूछ रहा है, मेनली प्राइमरीली। तुमको पता है एनसीईआरटी के हिसाब से 70 to 80% of electrolytes and water reabsorb from the PCT. ओके, तो पोटेशियम तो हमारा एक्सक्रीट होता है तुम्हारा गवर्न्ड बाय पोटेशियम रीअब्जॉर्प्शन इन द पीसीटी ऑफ द कम्युनिटी ट्यूबुल, यही होगा आंसर। ओके, अरे एक्सक्रीशन हो रहा है ना, तो कुछ रीअब्जॉर्ब हो, सिक्रेशन क्यों होगा? समझो बात तुम्हारा, थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बहुत से बच्चों को तुम्हें डाउट होगा। देखो ये हमारा हो गया बाउमैन कैप्सूल, बाउमैन कैप्सूल, पीसीटी। तो वो बोल रहा है तुम्हारा यूरिन में पोटेशियम बाहर जा रहा है, इन यूरिन पोटेशियम एक्सक्रीटिंग, तो बहुत जा रहा है, तो कैसे रेगुलेट होगा? तो उससे तुम्हारा कुछ अमाउंट पोटेशियम तुम्हारा रीअब्जॉर्ब भी होगा, तो पीसीटी से तुम्हारा क्या होता है, पोटेशियम रीअब्जॉर्ब भी होता है, ठीक। तो जितना जाएगा उतना रीअब्जॉर्ब भी तुम्हारा होगा फॉर बैलेंस के लिए। पीसीटी इज द साइट फॉर बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, तो जितना पोटेशियम तो जाएगा भी यहां से, उतना यहां से रीअब्जॉर्ब होगा। दैट इज द रीजन दैट पोटेशियम रीअब्जॉर्प्शन इन द पीसीटी। ओके, देखो, if 1 liter of water is introduced in human blood, then if 1 liter of water introduced in human blood, then BMR increases, RBC collapse and urine production increases। तो एक बार पढ़ लो, तो आई एम गिविंग द, इसका मैं दे रहा हूं तुमको। So you see here, यही होगा, if 1 liter of water is introduced in human blood, तो क्या होगा, the RBC they collapse, okay, and there will production of dilute urine। हम जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना हमको क्या, will excrete the urine, okay। तुम वाटर दे रहे हो तो RBC will collapse, the RBC will level, okay। So next, Ornithine cycle removes 2 waste products from our blood in liver. These are
चलो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एमोनिया, एमोनिया एंड यूरिया, एमोनिया एंड यूरिक एसिड। क्या होगा ये? ऑर्निथाइन साइकिल ये कहां पे होता है? लिवर में होता है। द साइकिल इज फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, ओके, एंड यूरिया इज फॉर्म फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड एमोनिया। तो ये वाला होगा तुम्हारा, ओके। ऑर्निथाइन साइकिल रिमूव्स टू वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड, ठीक, बिकॉज द यूरिया इज फॉर्म बाय फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड एमोनिया। तो यही हमारा ब्लड से रिमूव होता है। आंसर इज द बी, ओके। चलो, थोड़ा स्लाइड, थोड़ा स्लाइड लोड हो रहा है, ओके। सो नेक्स्ट, एक मिनट, ओके। Which one of the four parts mentioned below does not constitute a part of single uniferous tubule? चलो, सो देख लो लीडर बोर्ड तुम्हारा, ओवरऑल तुम्हारा पोल का लीडर बोर्ड। तो ये तुम्हारा होगा कलेक्टिंग डक्ट, ठीक। A person is who on a hunger strike and is surviving on water. A person who is on hunger strike surviving in water will have, क्या होगा उसमें होगा, ठीक। सो ये तुम्हारा पोल स्टार्ट हो गया। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है, सो देखो इसका क्या तुम्हारा आया है, सिद्धार्थ शंकर कीर्ति यूजर। अरे क्या, ए पर्सन हु इज ऑन ए हंगर स्ट्राइक एंड इज सर्वाइविंग ओनली इन वाटर, वो खाली पानी पी रहा है, कुछ खाना नहीं खा रहा, हंगर स्ट्राइक में, तो उसका क्या होगा, लेस एमिनो एसिड इन इज यूरिन। वो तो खाना ही नहीं खा रहा है, तो नॉर्मली भी एमिनो एसिड यूरिन में नहीं आता है, ठीक, एबनॉर्मल, तो ये होगा ही नहीं तुम्हारा। देयर इज वेदर यू आर फूड टेकिंग और नॉट, नो एमिनो एसिड इन द यूरिन, मोर ग्लूकोज इन द ब्लड। अगर डायबिटीज है तभी ग्लूकोज आएगा ब्लड तुम्हारा, ये तो है ही नहीं ना, ब्लड हो गया इसमें, ये तो यूरिन का बात कर रहा है। मोर सोडियम इन द यूरिन, ये भी तो आंसर तुम्हारा ये है, लेस यूरिया इन इज यूरिन। अगर तुम खाना खाओगे तो ज्यादा यूरिन तुम्हारा यूरिया आएगा, इफ यू आर टेकिंग लेस फूड तो देयर इज द लेस यूरिया इन इज द यूरिन, ठीक। तो ये वाला तुम्हारा,
Yes. Of coronary blood vessels, which one of the following statements correctly describe what is being done? एक बार पढ़ लो अच्छा से, ठीक। ये डायग्राम क्या शो कर रहा है? What the diagram indicates? ये डायग्राम हमारा है, यहाँ पे क्या शो हो रहा है, ठीक। एंजियोग्राम ऑफ कोरोनरी ब्लड वेसल्स, ठीक। तो इसका तुमको मैं दे दे रहा हूँ पोल। What the diagram indicates? You might have faced the question in many objective books. ये रहता है क्वेश्चन तुम्हारा। डायग्राम तुम्हारा क्या शो करता है? You might have faced the questions. तो देखो तुम्हारा यही होगा। So this one, ये तुम्हारा होगा। It is a coronary artery which is blocked by plaque. Plaque मतलब hard mass. Okay? यहाँ पे कुछ plaque तुम्हारा रह गया है। There are some plaques, hard mass. It is a coronary artery which is blocked by plaque, and the same is being cracked. मतलब it is called angioplasty. एक कैथेटर और बैलून यहाँ पे लिया जाता है, and जब वो बैलून ब्लास्ट होता है, that plaque will be destroyed. ठीक? जब तुम मेडिकल डॉक्टर बन जाओगे तो डिटेल पढ़ना इसके बारे में। थोड़ा लास्ट मोमेंट में थोड़ा स्लाइड स्लोली लोड हो रहा है। Okay. During ventricular systole, what happens? During ventricular systole, क्या होता है? I'm tracking the poll. देखो, ठीक। वेंट्रिकुलर सिस्टम ये तुम्हारा होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड इनटू द एओर्टा एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक। नेक्स्ट 24. Female blood maintains homeostasis in the internal environment of the body by how we maintain the homeostasis? एक बार पढ़ लो अच्छा से, ठीक। तो 24 का हम पोल ले लेते हैं। चलो, तो तुम्हारा देखो, तो इसका जो तुम्हारा आंसर तुम्हारा होगा डी होगा, ठीक। मेंटेनेंस ऑफ योर आयरन concentration in the body fluid and by your आंसर होगा, ठीक। दिस इज आंसर।
होम्योस्टेसिस। लगभग हर ऑप्शन तुमको सेम लग रहा है, बट इफ यू करेक्टली स्टडी दिस वन, मेंटेनेंस ऑफ आयरन कंसंट्रेशन इन द ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स बाय एलिमिनेटिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक, नेक्स्ट, match the columns common names of disease listed under column 1 and 2 with their medical terms। okay, under column 2 choose the answer which gives। तो डिजीज को मैच करो बच्चों लोग, चलो मैच करो, and I'm starting the poll। चलो सो देख लो, ये तुम्हारा हो गया लीडर बोर्ड। ठीक, सो 25। ओके, तो अगर हम मैच यहाँ पे करेंगे, देखो अगर हम मैच करें यहाँ पे, तो ये तुम्हारा ब्लड क्लॉटिंग इन स्मॉल कैपिलरीज, ब्लड क्लॉट स्मॉल कैपिलरीज, इसको हम बोलेंगे कोरोनरी थ्रोम्बोसिस बोलेंगे, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। ठीक, वाल्व डिफेक्ट, इसको हम स्टेनोसिस बोलेंगे। ओके, हे फीवर, ये राइनिटिस हम इसको बोलेंगे। पैरालिसिस, ये तुम्हारा आएगा पार्किंसन डिजीज। ओके, नेक्स्ट, the enzyme called universal enzyme that is present everywhere, starting from protozoans to mammal। प्रोटोजन मामल हर जगह में तुम्हारा हुआ। ठीक, देखो कौन सा ट्रिप्सिन होगा। ठीक, द एंजाइम कॉल्ड यूनिवर्सल एंजाइम which is present in all organisms starting from protozoans to mammal, ये तुम्हारा होगा ट्रिप्सिन, याद रखो। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, यहां से चूज करो कौन सा इसमें तुम्हारा रॉन्ग है। चलो पोल स्टार्ट हो गया। choose the wrong statement। ओके, इसमें ये तुम्हारा रॉन्ग है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा, ये वायरल इन्फेक्शन होगा। दिस इज द वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन, ओके, ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, दैट इज मोस्टली पैरामिक्सोवायरस। एक तुम्हारा वायरस होता है पैरामिक्सोवायरस। ठीक, इन्फेक्शन ऑफ दैट कॉज मम्स। ओके, चलो इसका कर लो। On the ECG recording, maximum pressure would be, कहां पे होगा देखो। तो इसका जो तुम्हारा आंसर तुम्हारा होगा ये वाला होगा, at QRS complex, because at QRS complex there is what depolarization of both the atria। At QRS complex there is depolarization of both the atria
So they contract and there is the maximum ventricular pressure. ठीक, ये तुम्हारा होगा QRS कॉम्प्लेक्स। देखिए, तो कॉलम थोड़ा मैच करो, ठीक, थोड़ा मतलब बड़ा करूंगा तो नहीं होगा, क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बड़ा है, एक बार पढ़ लो अच्छा से, जस्ट एवे रेडी, उसके बाद हम पोल करेंगे, देन वी गो फॉर द पोल। तो चलो इसका मैं पोल तुम्हारा स्टार्ट कर दे रहा हूँ, 29 का पोल मैं तुम्हारा स्टार्ट कर दे रहा हूँ। सो ठीक, तो ये तुम लीडर बोर्ड तुम्हारा हो गया। ओके, अगर तुम केयरफुली तुम देखोगे, इफ यू मैच द केयरफुली, ठीक, अगर हम केयरफुली इसको मैच करेंगे तो तुम मैच करो इसको, तुम केयरफुली, तो तुम इसको मैच करो, सी ऑप्शन तुम देखो यहाँ पे। ओके, मैच करें केयरफुली, स्फिंक्टर ऑफ एनी इंटरनस, ये एनस में होता है ये, ठीक, गार्डिंग द टर्मिनल पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये एनस में होता है। बाकी तो तुमको पता ही होगा, कार्डियक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर ऑफ बॉडी, इलियोसिकल स्फिंक्टर, पाइलोरी स्फिंक्टर, ये तुम खाली नहीं पता होगा। स्फिंक्टर ऑफ एनी इंटरनस मतलब एनस एरिया में ये तुम्हारा होता है। इफ यू केयरफुली मैच तो ये तुम्हारा आंसर होगा। ओके, dash is true stomach of ruminants because जो ट्रू स्टोमक होता है रूमिनेंट का, उसके बारे में तुम्हारा ये वाला है। देखो, ये तुम्हारा होगा लीडर बोर्ड, तो ये तुम्हारा आंसर क्या होगा, डी होगा। ओमाजम, सॉरी एबोमाजम, केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, ठीक, यहाँ पे तुम्हारा ये वाला आंसर होगा एबोमाजम, because chemical digestion of food takes place in case of by gastric juice. In case of ruminants like तुम्हारा cattle, buffalo, sheep, goat, their true stomach is the abomasum. Abomasum. So chemical digestion due to the presence of gastric juice. ठीक. Which of the following is seen on the free surface? ठीक. Which of the following is seen on the free surface of epithelial cells of the small intestine? चलो, इजी क्वेश्चन है तुम्हारा ये। दैट इज योर, इसको माइक्रोविलाई बोलते हैं, ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया माइक्रोविलाई, डी, ठीक, माइक्रोविलाई। Find out the mismatch. Find out the mismatch. Find out the mismatch.
ओके, तो इसमें कौन सा मिसमैच तुम्हारा, ये वाला तुम्हारा है, बाकी तो सब तुम्हारा ठीक है। बोलस और काइम, काइल, ये सब तुम्हारा ठीक है। तो काइलोमाइक्रोन, दे आर द प्रोटीन कोटेड, नॉट फैट कोटेड, दे आर द प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स एनसीईआरटी के हिसाब से। ओके, एनसीईआरटी के हिसाब से। सो नेक्स्ट, मैं चैट थोड़ा तुम एनेबल कर रहा हूँ, देखते हैं क्या सब तुम चैटिंग कर रहे हो। ओके, स्लाइड थोड़ा लोड हो रहा है। आज थोड़ा हर जगह प्रॉब्लम है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एक बार पढ़ लो इसको, जस्ट ए रीडिंग। इसका पोल तुमको मैं दे दे रहा हूं, गिविंग द पोल। चलो, सो देख लो, इसका आंसर ये वाला तुम्हारा होगा। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है, अगर हम केयरफुली पढ़ेंगे तो ये तुम्हारा रॉन्ग है, ये वाला रॉन्ग है। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये ड्यूडेनम नहीं होता है, इट इज योर इलियम, ये इलियम होता है। यस, इट इज इलियम। बाकी सब तुम्हारा सही है। ठीक, तो तुम्हारा ये वाला ऑप्शन, ओनली वन इज इनकरेक्ट, तो सी तुम्हारा होगा, ये इनकरेक्ट तुम्हारा है। ओके, फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। सॉरी, चलो इसका पोल तुमको मैं स्टार्ट कर दे रहा हूं। ओके, आज बच्चा लोग थोड़ा नेट का थोड़ा इशू है, आज स्लाइड वगैरह थोड़ा स्लोली लोड हो रहा है। सुस्मिता, हेलो। तो ये लो तुम्हारा पोल का ओवरऑल तुम्हारा आ गया। ठीक, तो ठीक, तो इसमें जो हमारा था 34 तुम्हारा, तो तुम थोड़ा देख लेना। लिवर इज प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डायफ्राम, यहां तक तो ठीक है, और लिवर हैज 3 लोब्स, तो लिवर हैज 2 लोब्स, यहाँ पे 2 होगा, ये 3 नहीं होगा। ठीक, तो ये वाला रॉन्ग है इसमें। ओके, तो इसमें ये वाला रॉन्ग है, सो आंसर इज द सी। चलो लास्ट वाला वेरी क्विकली कर लो। ठीक, 35। जानवी बेटा तुमने लास्ट में ज्वाइन किया, ठीक, यू जॉइन एट लास्ट। तो ये वाला तो आखिरी क्वेश्चन तुम्हारा था। ठीक, इट वाज द लास्ट क्वेश्चन। सो 35 का तुम्हारा क्या होगा, तो तुम्हारा सी होगा। एट द एंड ऑफ द इलियम एन आउटग्रोथ फ्रॉम द सिकम। ठीक, सो तुम्हारा टाइम ओवर हो गया। सो आज के लिए इतना तुम्हारा। ओके, नेक्स्ट क्लास अगेन विल